السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے؟ آ جائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ سوری، اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں، ظہر کیا کی حال ہے؟ نماز لیٹ ہو گئی تھی تھوڑی۔ اوکے، شروع کرتے ہیں جی انشاءاللہ۔ میں ٹھیک ہوں۔ چلو، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ تک پڑھ لیا ام، یہ لیسن پورا کمپلیٹ کیا تھا ہم نے، یا ہاں یہ کر رہے تھے نا ہم لوگ، نہیں، تو اس وہ کے اندر میں دیکھتی ہوں کیا ہم پیج دیکھنا 65 ہے I think پیج؟ نیچے۔ ہاں ہاں ٹھیک، ادھر سے، ہاں ادھر سے اوپر، ہاں اچھا ادھر سے۔ یہاں سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جی، باقی میں نے کہا تھا ایزی ہے۔ یہ مسلح کیا ہے؟ المسلح یہ مفعول، بافعل یفعل سے ہے نا، کیا بنا ہوا ہے؟ جی اسم مفعول، اسم مفعول، جی اسم یعنی نماز پڑھنے کی جگہ، جی ظرف ہے نا۔ ظرف اور مفعول جو ہوتا ہے نا وہ ایک ہی وزن پہ ہوتا ہے۔ جی مفعول بھی مسلح ہے اور ظرف بھی ہی مسلح ہی ہے، تو اس کو آپ جی دونوں چیزیں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہوں اور مسلی کیا ہوگا؟ نماز پڑھنے والا، اسم الفاعل، ٹھیک ہے جی نا۔ یہ کیسے بنا ہوا؟ ماضی کیا ہوگا؟ سواد لام یا، اس کا روٹ ورڈ ہے صلی یا۔ جی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں نا، وہ بھی یہی ہوتا ہے۔ صلی جی یا سے پھر صلی بن جاتا ہے، یا سے پہلے یا پہ زبر ہے، پہلے زبر ہے، تو یہ صلی بن گیا، ٹھیک ہے۔ جی اور جب ہم اس کے آگے اللہ لگاتے ہیں تو یہ کھڑی زیر جو ہوتی ہے یہ سیدھی زیر بن جاتی ہے، تو کیا بن جاتا ہے؟ جی جتنی بھی کھڑی زیر ہوتی ہیں نا، الٹی پیش ہوتی ہیں، وہ سیدھی ہو جاتی ہیں جب ملاتے ہیں تو آگے اللہ کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت پیاری بات ہے، تو یہ آپ کا سیدھا ہو جاتا ہے، زبر میں چینج ہو جاتا ہے، واپس زبر میں جی چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے یہ جی سیدھا ہوا پڑھنے کے لیے صلی اللہ، لیکن جب اس کو ملانے لگے تو پھر سیدھی زبر بن گئی کھڑی زبر، اور پھر ہم نے کیا پڑھا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی وسلم بھی اسی سے ہے، سلم یسلم تسلیم، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اسی سے ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، مضارع ہے یا امر ہے؟ یہ والا، کیا؟ ناٹ دس ون، یہ والا ٹھیک، لاسٹ میں زبر آ رہی ہے نا، ہوں لاسٹ میں زبر آئے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ ماں، ہے نا، اللہ ماں جی یو اللہ۔ بہت پیاری جی باتیں ہیں، اگر یہ آپ سیکھیں گے نا تو آپ کو عربی میں اتنا انٹرسٹ ہوگا۔ یو اللہ، یو ہوں اللہ، یہ مضارع ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر تعلیم، مصدر کیا بنے گا؟ تعلیم، جو آپ تعلیم کہتے ہیں نا، ایجوکیشن، تعلیم بہت ہوں ضروری ہے، تو وہ تعلیم تفعیل کے وزن پہ ہے، تعلیم، یہ ماضی ہے، یہ مضارع ہے، اور یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ روٹ ورڈ کیا تھا؟ عین لام میم تھا، ٹھیک ہے، اس سارے ہیلدی لیٹر تھے، لیکن اس میں کیا ہے؟ یا آ گیا، ایک حرف علت آ گیا، تو اس وجہ سے یہ جو ہے پھر یہ صلی بنا، اور یہاں بھی پھر یہ کھڑی زبر جو ہے یہ سیدھی زبر ہوئی، اور یہاں پر آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم بن گیا۔ جی وسلم میں سارے لیٹر سیدھے ہیں، مطلب ہیلدی ہیں، سین لام میم۔ اچھا، اب جی جیسے جب ہم اسم صلی یا سے جب ہم مضارع بنائیں گے تو یو صلی، یو بنے گا نا، یہ تو جی ماضی ہے جی نا، صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دعا جب ہوں بھی دیتے ہیں نا ہم ماضی میں ہی دیتے ہیں۔ جی جزاک اللہ خیر، آپ کو مضارع لگتا ہے کہ جزاک اللہ خیر؟ نہیں اور کیا کیا دعا دیتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ، رضی شفال ہاں، رضی اللہ عنہ، ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم، جزاک اللہ خیرن، اور کیا کیا دعائیں ہوتی ہیں؟ بہت سی دعائیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ شفال لہو ہاں،
कल्लाहु, शफा कल्लाहु, अल्लाह आपको शफा दे। वेरी गुड, माशाल्लाह। अब इसमें भी देखें, ये माजी है, शीन पा या इसका रूट वर्ड है, तो ये अलिफ में चेंज हो गया। ठीक जी है, तो शफा कल्लाहु, अल्लाह आपको शफा दे। तो ये माजी है। दुआ हमेशा किस में देते हैं? माजी में देते हैं, लेकिन उसका मीनिंग किस में जी होता है? फ्यूचर में। जी अल्लाह आपको शफा दे, है ना। जी जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपसे राजी हो। माजी है ना, हम्म माजी है, लेकिन दुआ किस में है? उसमें। फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी माजी है। अब इसका मुजारे क्या जी बनेगा? युसल्ली, है ना। जी युसल्ली बनेगा ना, युसल्ली यू, है ना। जी लेकिन यहाँ से पहले, यहाँ पे पेश हो और पीछे जेरो, तो इसको साकिन कर देते हैं, युसल्ली हो जाता है। ठीक हम्म है। अब जब आप युसल्ली यू से आप बनाएंगे इस्मुल फाइल, तो क्या बनेगा? युसल्ली यू है ना, युसल्ली हम्म यू से आप बनाएंगे, युसल्ली से बनाने की बात है। तो जब आप बनाएंगे तो क्या बनेगा? इस्मुल फाइल। इसको मीम में चेंज करेंगे ना, है। हम्म और ये क्या, और यहाँ पे दो पेश जी लगा देंगे। और तो यहाँ पे जी अगर, यहाँ पर अगर जेर नहीं लगी हुई तशदीद के नीचे, तो आपके तशदीद यहाँ है, अगर इसके नीचे जेर नहीं लगी हुई तो आप लगाएंगे। ठीक है, तो हम्म ये बन जाएगा मुसल्लियुन। जी मुसल्लियुन क्या होता है? नमाज पढ़ने वाला, इस्मुल फाइल। हम्म अभी तक जी जो आप इस्मुल फाइल पढ़ते रहे, वो फाइलों के वजन में पढ़ते रहे ना। हम्म यहाँ पर ये मजीद फी का बाब है ना, 4 लेटर हो गए हम्म इसके अंदर। युसल्ली में जी 4 लेटर है, सल्ला में 4 लेटर है, अल्लाह मामीन भी चार हम्म लेटर है। तो तभी तो पेश आई है यहाँ पे। अब इसका जब इसमें जी फाइल बनाएंगे तो क्या बनेगा? युवल्लिमु से क्या मौलम बन, मौल मुअल्लिमुन बनेगा। और उसका जो मफूल बनाएंगे तो क्या बनेगा? मौलमुन मुअल्लमुन, जबर हो जाएगी। तो बिल्कुल ऐसी यहाँ पर भी मुसल्ली बना था, मुसल्ली, और फिर जब जेर को जबर में चेंज किया तो मुसल्ला बन गया। ठीक है। हम्म जी ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया? जाए नमाज, नमाज पढ़ने की जगह। हम्म तो मुसलमानों के लिए पूरी जितनी भी जमीन अल्लाह ताला की, वो सब मुसल्ला है, लेकिन वहां पे बस जी जाहिरी गंदगी नहीं होनी चाहिए, नजासत नहीं होनी जी चाहिए। लेकिन अगर पाक साफ जगह है तो पूरी पूरी जमीन, जहाँ मर्जी आप नमाज पढ़ लें, मुंह आपको खाने काबा की तरफ जी करना है, लेकिन हाँ, उस वहां पे जाहिरी कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, जानवरों का कोई या कोई और चीज नहीं होनी चाहिए। तो फिर यहाँ पर हम क्या जी करेंगे? ये मुसल्ला हो गया, जाए नमाज। ऐनल मुसल्ला, वेर इज द मुसल्ला, जाए नमाज कहाँ है? ठीक है, हम्म या नमाज पढ़ने की जगह कहाँ है? हर मस्जिद के अंदर एक जगह बनी होती है, जैसे मेहराब कहते हैं ना, हम्म मेहराब, है ना। तो वहां पे ये हम्म इमाम खड़ा होता है, उस जगह को भी मुसल्ला कहते हैं। इमाम खड़ा, इमाम के खड़े होने की जगह, ये इमाम का हम्म मुसल्ला है, जाए नमाज है। यानी वो मेहराब जो होता है, हम उसे मेहराब भी कहते हैं, लेकिन मुसल्ला भी कहते हैं भी। ठीक है। अच्छा, जी अदरसू बिल जामियातिल, जामियाती बिल मदीनातिल मुनव्वरा। बी का मतलब यहाँ पे एट होगा। ठीक है। क्या जी तर्जुमा इसमें कौन सी जमीर है? अना। ठीक है। अना अदरुसु, मैं पढ़ता हूँ, कहाँ पढ़ता हूँ? जामिया एट यूनिवर्सिटी में। एट, जी एट जामिया यूनिवर्सिटी बिल मदीना तिल मुनव्वरती। इसको भी ऐट ही कर लें या हम्म फी कर लें। ठीक है। जी ठीक है, फी भी कर सकते हैं, ऐट भी कर सकते हैं। हाजा हम्म दवा उन मुकव्विन, मुकव्वी जुन था असल में ये। ठीक है, फिर या को हम्म गिरा दिया और पीछे एक जेर तो दे दी। ठीक है ये तो आपको पता है ना, हम्म या को गिरा देते हैं और ऊपर दो पेश हो या एक पेश हो तो उसको गिरा दिया जाता है। तो ये क्या बन जी गई फिर? इसकी जगह फिर हमने क्या लगा दिया? मुकव्विन कर दिया। अब मुकव्विन क्या है? कुव्वत देने वाली, आयरन की टैबलेट दिखाई है ना। हम्म
तो ये क्या है, ताकत देने वाली है। कवि से काफ वो या रूट वर्ड है, तो कब व या, यू कब वी यू, और मुकब वी यूं। ठीक है। कब व या में कितने लेटर है बताएं? 4 4 2 हैं। वाव। और मुजारे क्या बनेगा? यू कब वी यू। कभी ठीक है। अब ये दूसरा बाब है जो हम सीख रहे हैं। पहला बाब इफाल था, यू कब वी यू यू। और इससे मस्दर क्या बन जाएगा? अगर इसम फाइल क्या बनेगा? यू कभी यूं से यहाँ मीम लगाएंगे और यहाँ 2 पेश लगा देंगे, मुकव्वियुन। ठीक है। अब मुकव्विन कैसे बन गया? ये हमने गिरा दिया इसमें के एक और से, मुकव्विन का। ये इसमुल फाइल है, अगर ऊपर जबर लगाएंगे तो वो इसम मफूल बन जाएगा। ठीक है। जी। और उसके बाद क्या है, यहाँ से पढ़ लेते हैं नंबर 7 से। ठीक है, पढ़िए। जी। من أوز من أوزان جمع التكسير فعالة نحو طالب طلبات طلبة. तालिबुन की जमा आपने तुल्लाबुन पढ़ी थी ना, है ना? जी। ये भी जमा है, तलबतुन। ये भी जमा है, एक तो तुल्लाबुन जमा है और ये भी जमा मुकस्सर ही है, फ़अलतुन के जी। वजन पे। जैसे कफ क्या होती है, कफ काफिरुन होता है ना, तो जी। काफिरुन की जमा तो कुफार भी होती है ना, और एक काफिरून भी होती है ना। लेकिन जी। एक जमा क्या बन जाएगी? कफरतुन। इसी तरह फाजिरुन से क्या बन जाएगी? फजरतुन। रतन. फाजिरतुन, फाजिरुन से फजरतुन। तो इसी तरह तालिबुन से क्या बन गई? ये इस्मुल फाइल है और ये उसकी जम्मा है ना, ये उसकी जम्मा है। तो ये वाली जमा किस उस पे बना रहे हैं, यानी किस पे बनाते हैं? 5 दफा होती है ना, जैसे काफिरुन की कितनी जमा है? काफिरूना भी आता है, काफिरीना भी रफे नस्बी जरिया रफ में आता है। इसी तरह आपका फाजिरुन, काफिरुन और तालिबुन और भी होते हैं। फजरतुन भी बनती है ना जमा इसकी, फाजिरुन भी बनती है, तो फजरतुन भी बनती है। तो कुछ अस्मा होते हैं जिनकी 2 2 3 3 जमा होती है, तो एक जमा तलबतुन के वजन पे भी आती है। ठीक है। तो ये भी याद रखना है। ठीक है। जैसे तालिबुन से तलबतुन, इसी तरह काफिरुन से कफरतुन। आगे। هذه جمع الأسماء الآتية على هذا الوزن. वजनी, वजनी। ठीक है। तो फालतुन के वजन पे फिर आपने जमा तकसीर बनानी है। जमा तकसीर कौन सी जमा होती है? जमा तकसीर कौन सी जमा होती है? जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर को जमा तकसीर भी कहते हैं ना। ये कसरा से निकला हुआ है ना। जो जी। मुकस्सर होती है ना वो सीन से होती है ना। ठीक है। जमा मुकस्सर यानी टूटी हुई जमा, है ना। ये जी। सालिम का ऑपोजिट है ना। सालिम जी। का ऑपोजिट है ये, साउंड और ब्रोकन। ठीक है। और तकसीर का जी। मतलब होता है कि 3 लोगों से ज्यादा, 3 से जमा स्टार्ट होती है, 3 से शुरू होती है, 3 प्लस से। आप याद रखें कि उर्दू और इंग्लिश में 2 से ही प्लस स्टार्ट हो जाता है, प्लूरल स्टार्ट हो अरबिक जाता में है। उसको डुअल कह देते हैं ना। हाँ, वो डुअल कर देते हैं और ये आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर इससे भी ज्यादा हो जाए ना तो फिर वो क्या होता है, वो आपकी जमा तकसीर बन जाती है। ठीक है। अब तालिबुन से तलबातुन जमा तकसीर है। तकसीर का मतलब क्या है? जी। यानी 3 से ज्यादा हो गया ना। जी। कसरा, ये असल में बाप तफील से ही बना हुआ है। कसरा युकस्सिरु। ठीक है। तकसीर, ये भी उसी से कसरा युकस्सिरु और तकसीर। ये तकसीर काफ सा रा रूट वर्ड से, ये काफ सीन रा से बनी हुई है। ये कसरा है। कसरा का मतलब जिसको टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। एक गिलास है ना, कभी कभी गिलास टूटा है, 2 टुकड़े होते हैं, बहुत खुशी होती है 2 ही टुकड़े हुए हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, चूरा चूरा हो जाता है ना, गिरता है। और जी। वो ऐसे मटेरियल से बना होता है कि बिल्कुल चुनना मुश्किल हो जाता है। ऐसा कभी जी। इत्तेफाक हुआ है?
कभी जी बाउल बहुत ऐसे दफा होते हैं, हाँ बाउल होते हैं, वो 2 टुकड़े होते हैं कभी, और कभी पूरा ही वो फैल जाता है, तो जी मुश्किल हो जाती है। तो कसरा का ये मतलब है कि बहुत ज्यादा है, जिसको हम कहते हैं ना पंजाबी में फीते फीते हो जाना, कहते हैं ना, पता नहीं आपको पता हम्म नहीं, यानी बिल्कुल ही उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। अच्छा, हम्म, एक चीज टूटती है, थोड़ी सी टूटती है भाई, और एक होती है बहुत ज्यादा, जमा तकसीर का वजन है। ठीक है, जी तकसीर का मतलब है बहुत, एक तो ब्रोकन होता है कसरा, युकसिरु तकसीर, और एक ये होता है तकसीर। दोनों वर्ड को देख लें। अब आप काफिरुन, फासिकुन और फाजिरुन से बनाइए, देखें वही तीनों लफ्ज आ गए जो मैंने बताए। फासिक से क्या बन जाएगा? जी कफरतुन कफरतुन बिनाजानी जमा तकसीर। अब ये जमा तकसीर यहाँ पे सीन से लिखा हुआ है, ठीक है, ये और वहां जी पर सीन से लिखा हुआ है, इसमें गलती कोई नहीं है, दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है, हम्म दोनों एक ही चीजें हैं। मिन औजानी जम इत तकसीरी फु अलुन, क्या बनेगा? नुसखतुन या नुसखुन, ठीक है, हम्म यानी ये किस वजन पे है? फु अलतुन के वजन पे है। जी और ये क्या है? फु अलुन के वजन, ये मुजक्कर है और ये मुअन्नस कर ले, ठीक है ना। हम्म अब काफिरुन जो है ना, वो क्या है? कफरतुन भी बन सकते हैं, हम्म और फासिकुन क्या बन सकता है? फुसखुन, फुसखुन भी बन सकता है। और फाजिरुन जो है वो दोनों तरीके से लिखा जाएगा। जी अब यहाँ पे देखें, सुवरुन, सुवरतुन, तो सूरतुन ये फुअलुन, ये देखें। जी अब ये नंबर 8 शुरू हो गया ना, सॉरी ये ऊपर खत्म हो गया। वो जो जी ऊपर हमने पढ़ा है ना, ये वाला तो इसी वजन पे बनाना है हमने, ये वाले हम्म वजन, ठीक है, इसको जी हमने इसी वजन पे बनाना है। कफरतुन, हम्म, फसकतुन, और ये क्या बन फज- जाएगा? ये फजर इस फजरतुन फजरतुन, हम्म, फजरतुन, फा अलिफ को निकाल देना है, बाकी लिख देना है। ये जी फा है, ये ऐन है, ये लाम है, फा ऐन लाम, और अलिफ बीच में एक्स्ट्रा है, इसको निकाल देना है और यहाँ पे गोल करो। अच्छा, अब आपने क्या जी करना है, ये वाला पढ़ेंगे, ये नया है, ये जो है अलग है, ये जमा मुकस्सर जी है, ठीक है, ये हम्म ये कसरा से है ना, सीन से है ये, जी इसका वजन भी अलग है। वो था फ़अलतुन, और ये है नुसखतुन, और मुजक्कर जी के लिए क्या है? नुसखुन है। चलिए अभी पढ़िए। जी अम, من أوزان جميع التكسير فعل نحو نسخة نسخ هاتي جمع الأسماء الآتية على هذا الوزن जम, give the जम full इ yeah. जम इत तकसीरी, जी मिन औजानी जम इत तकसीरी फू अलोन के वजन पे नुसखुन बन गया, ठीक है। हम्म और नुसखतुन क्या है? ये मुअन्नस है। नुसखुन क्या है? ये जी मुजक्कर है। हाथी जम अल अस्मा इल आतियती, ये आने वाले जो जी हैं उनको फू अलोन के वजन पे डालें, ठीक है। जी तो सुवर उन भी होता है, आपको पता है ना, सुवर उन भी होता है। जी इसकी जमा जो होती है ना, सूरत उन तो मुजक्कर है ना, सॉरी हम्म ये क्या है? ये वाहिद है। सूरत हाँ उन क्या है? एक वन सूरत को बोलते हैं ना, पिक्चर को बोलते हैं ना, पिक, हम्म एक सूरत को बोलते हैं। जी जब जमा बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगी? सुवरुन भी बन सकती है, मैंने आपको कितनी दफा बताई है सुवरुन, हम्म ये वाली भी सुवरुन बन सकती है, और ये इस वजन पे भी बन सकती है, नुसखतुन पे भी बन सकती है। जी यानी आपका क्या बन जाएगा? सुवरुन क्या बन जाएगा? बीच में से क्या हटा दिया? वो हटा दिया ना, हाँ तो जी क्या बनेगा? जी इस वजन पे बनाए। जी so सूरतुन हम्म, चले इसी वजन पे बना लें, सूरतुन और नुसखुन पे, सूरतुन नुसखुन पे बना लें, तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये जी गुरफतुन क्या है? ये इस वजन पे बना हुआ है, जी नुस्खतुन सुबरतुन, ये वाला जो है ना सुबरतुन, ये जो वाहिद बना हुआ है, ये इस वजन पे बना हुआ है, और इसकी जमा किस वजन पे बनेगी? फुअलुन के वजन पे बनेगी। तो अब आपकी जमा तो ये क्या हो बन जाएगा गई? समझ आ गई आप लोगों को सूर बात? ये वाहिद का वजन है, जी और ये जो है जमा का वजन बनाना है।
जमा जी। कब तो एक ही वजन पे बनेंगी, दूसरे पे नहीं बनेंगी। पहले वाले वजन तो वो खुद है ना, इसमें आप देखें सुवरतुन और नुसखुन। चलिए अब इनको बनाए, नुसखुन के वजन पे बनाए। हुरफुन, so that right this one, क्या so it's बनेगा? yeah like, सुवरुन, इसका इसका oh भी no you did that, सुवरुन बनेगा। जी। और आगे क्या? सुवरुन, हुरफुन, गुरफुन, वेरी उम्मुन, गुड, गुरफुन। गुरफुन इसकी जमा होती है, गुरफतुन तो एक कमरा होता है ना, हम्म एक कमरे को गुरफतुन बोलते हैं ना। एक जी पिक्चर को सूरतुन बोलते हैं, एक सूरा को सूरतुन बोलते हैं ना। हम्म और इसकी जमा सुवरुन, इसकी गुरफुन, हुरफुन, वो नहीं लगाएंगे, हम्म वो हटा देंगे जमा में। जी इस वजन पे बनाना है ना, वो हट गई है बीच में से। जी। तो आगे क्या है? उम्मतुन, उम्मतुन से उम्मुन, 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 उमामुन, okay, सॉरी, उमामुन, जी उमामुन, ये इसकी जी जमा बनेगी। यानी उम्मतुन एक उम्मत, और उमामुन बहुत सारी, जी उमामुन। हुआलुन के वजन पे, हुआलुन। इसका रूट वर्ड निकालें तो हमजा मीम क्या बनता है? मीम बनता है ना। तो हम्म आपने जमा बनाते हुए गोलता गिरा देनी है बीच में से, ये गोलता गिर जाएगी, सब में गिर जाएगी, उमामुन में भी जी। गिर जाएगी। और यहाँ पर क्या है? इसकी गोलता गिराएं तो ये हुआलुन तो के वजन पे क्या बनेगी? दुआलन, दुवालुन, और दुआलन, yeah sorry, दुवालन बन जाएगी। गोलता गिराएं और इस हम्म वजन पे डालें, मुस्तफन बन जाएगी। ठीक है। जी और कुछ सही है सब? जी नुसखुन मुजक्कर है, नुस्खतुन उसकी मुअन्नस है। अगर आपने इनकी फिर, ये हम्म तो वाहिद है ना सारे, ये जो लफ्ज पढ़े हमने ये वाहिद जी है, ये जमा हम्म नहीं है, ये जमा जी नहीं है, ये वाहिद है। इनकी जो जमा आपने बनाई है वो नुसखुन फुअलुन के वजन में बनाई है। हम्म ठीक है, तो ये आपने बनाई है। और ये जो है ये मुअन्नस है, ये मुजक्कर है, ये इसकी जी मुअन्नस है। नुसखुन और नुस्खतुन, एक नुस्खे की जमा क्या होती है? नुसखुन होती है। जी। हाँ, आगे क्या? नंबर 9। शरहुन, मसदर, मसदरू, शरह, यशरहु, वहुव ये मस्दर है, अला ठीक है ना, वज़नी, ये हम्म मस्दर है। और इसका मस्दर किससे बनता है? माजी और मुजारे से बनता है। ठीक है, जी ये मस्दर किसका है? ये सुलासी मुजरद का है, इसमें 3 ही लेटर हैं। तो ये जी मस्दर है शरहा यशरहू से। शरहा उसने एक्सप्लेन किया, यशरहू वो हम्म, एक्सप्लेन करता है। ठीक है, ये करेगा। जी। वह हुआ, पढ़े, वहुव अला वज़नी फ़ालिन, फालिन। सुलासी मुजरद के जो हम्म मस्दर होते हैं ना, ये बहुत तंग करते हैं, क्योंकि ये हर वजन पे बन रहे होते हैं। यहाँ देखें किस वजन पे बने, हुआ लोन के वजन पे बने। ठीक है। अब यहाँ पे किससे हम्म बन रहे हैं? ये आपका ये वाले वजन पे बन रहे हैं। हाथी मसादिर अफाली पढ़िए। هذه مصادر الأفعال الآتية على وزن वो فعل. क्या है? फालिन पे। तो फालिन पे क्या बनेगा? फालिन पे उन्होंने इसलिए लिखा है कि यहाँ पर ये यूज हो रहा है ना जुमले में, तो असल वजन क्या है? फालुन है। فعل जी ठीक है, ये इसमें यूज हुआ है तो दो जेरा है यहाँ पे, क्योंकि ये मुजाफ इलैह बन रहा है ना। वैसे फालुन वजन होता है। तो पढ़िए, जी माजी तो दरसा। درس يدرس درس ये मस्तर बना रहे فتح हैं, ठीक है, ये इस्मुल फाइल नहीं जी बना रहे। इस्मुल फाइल क्या बनेगा? इस्मुल फाइल क्या बनेगा? ये माजी है, ये मुजारे, मुजारे के पहले सीगे से हम क्या बनाते हैं? इस्मुल फाइल बनाते हैं। जी तो क्या बनेगा? जी दरसुन या दरसुन दुरसु है ना, दरसुन। हम्म अच्छा याद रखें, ये दरसा नहीं है, ये दरसा नहीं है, ये दरसा है। इसमें 3 ही लेटर है, तभी तो यहाँ जबर जी आ रही है ना। अगर ये होता जी दरसा, है ना, तो यू दरेसु होता ना, तो है ना, जी अल्लामा यू अल्लिमु। तो ये फिर उसका जो हम इसमुल फाइल बनाते वो मुँह दर्रिसुन बनाते ना, टीचर बनाते।
अभी जी। इसका इस्म मफूल दारे सुन बनेगा, दारे सुन बनेगा, फाइलुन के वजन पे बनेगा, क्योंकि ये सुलासी मुजरद से है ना। जी। सुलासी मुजरद वो होता है जिसमें सिर्फ आपके 3 ही लेटर होते हैं माजी रूट वर्ड के, तो फिर इसका हम फाइलुन के वजन पे दारे सुन बनाते हैं। ठीक है, जी। मफूल क्या बनाते हैं, मदरूसुन बताते हैं, फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन, है ना, ऐसे ही बनेगा हाँ। ना। लेकिन अभी हमने मस्तर हाँ। बनाने हैं। ठीक है, तो मस्तर क्या बनेगा, जी। इस वजन पे फोलुन फालुन के वजन पे दरसुन बन गया। अब बनाइए, दरबा यदरिबु, दरबा यदरिबु दरबुन। दरबन भी कह सकते हैं, 2 जबर लगाएंगी तो फिर आगे अलिफ भी आ जाएगा। ठीक है, तो कभी आपको जी। दरबन मिलेगा, कभी आपको, बात एक ही है, दरबन। जब 2 जबर लगाएंगे तो फिर अलिफ भी ऐड करना पड़ेगा। दरसन भी कर जी। सकती हैं, फतहन भी कर सकती हैं, लेकिन हम्म। यहाँ पर आपको सिंपल बताया गया है कि आपने कोलन के वजन पे बनाने, तो आप उसी जी। वजन पे बना लो। बताने का जी। तरीका ये होता है, माजी मुजारे और फिर आगे क्या कर लेते हैं, दरसन, दरस यदरुसु, दरब यदरिबु दरबन, कतला यक्तुलु कतलन। ठीक है, लेकिन अभी इन्होंने बोला है उसके पेश लगाओ, तो आप पेश लगा लें, जबर ना लगाएं। जी। तो क्या बनेगा, कतला यक्तुलु कतलुन। कतलुन, मला यमलाउ मलउन। मलउन। वेरी गुड। मलउन कैसे लिखेंगे, मल उन, जी। मल, अभी हमजा कहाँ लगाएंगे, एंड पे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये आपका मीम है, लाम हमजा, रूट वर्ड जो है ना वो जी। आपका मीम लाम हमजा ही है। ठीक है, जी। तो ये माजी बन गया मला, और ये यमला मुजारे बन गया, 3 ही लेटर हाँ। है, तो यहाँ पे जबर आई है, यहाँ आखिर में पेश आई है यमला, यफ अलू के जी। वजन पे है ना। कौन सा बाब बनता है, कौन सा बाब अ, बन रहा है, यफ्तहु। फतहा यफ्ताहु, यहाँ पे कौन सा बन रहा है, फत नो दरस यदरुसु। बाप बताए ना, बाप का नाम बताए। या यस, नसर यंसुर। हाँ, नसरा यंसुर, यहाँ पे क्या बन रहा है, दरबा, नो ये दरबा यदरिबु। ये तो दुआ दिए ना, है ना, और ये हम्म। वाला ये नून से। तो कितने बाब होते हैं, हम्म। एक बाब फतहा होता है जो यहाँ पे बन रहा है, ये नसरा है, जी। ये दरबा है, और ये नून है। ठीक है, आगे पढ़िए, ये किससे आ रहा है, बाप का नाम बताएं, दरबा यद नो फतह यफ्तहु। इसे फतहा just now। यफ्ताहु, बाप पा है ये। ठीक है, हम्म। इस पैटर्न पे जितने भी फेल बनेंगे ना, दोनों तरफ जबर होगी, वो बाप फतहा से ही बनेंगे, जैसे मला यमलाउ, है ना। और अमरा यमरू किस बाप से है, नसर यंसुर। अच्छा, इसका मस्तर क्या बना, फत फतहुन। फतहुन। ठीक है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, फतहुन। कभी आप बाद में पढ़ेंगे तो जी। बोलेंगे वो इतना इजी है ये तो, है ना। फर्स्ट टाइम जी। थोड़ा लगता है कि हाँ आप क्या पढ़ रहे हैं। अच्छा, अमरा या जी। अमरू बाप नसरा से है, और क्या बनेगा इसका मस्तर, क्या बनेगा, अमरुन। 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 अमरुन क्या होता है, हुक्म, हुक्म देना। हम्म। मस्तर का मानी जो होता है ना, उसके अंदर ना जमीर ना जरूर आता है, जी। अमरुन। अब अमरुन जो है ना, उसमें क्या, हुक्म देना, हम्म। खोलना, जी। भरना, उसने भरा, वो भरता जी। है, और मल उन, फिल करना कोई हम्म। चीज, फिल इन द ब्लैक्स में भी आप पढ़ते हैं ना, इमला, जी। इमला क्या बनेगा, इसका फिल अमर बनेगा। कतला जी। यक्तुलू से क्या बन जाएगा, कत्लुन, कत्ल करना, हम्म। मारना, और ये क्या है, उसने पढ़ा, वो पढ़ता है, दरसुन, पढ़ना, हम्म। पढ़ना, टू जी। टू रीड, है ना, टू स्टडी, जी। पढ़ना। हम्म। इंग्लिश में भी तो आप पढ़ते हैं, यन हा से क्या बनेगा, अच्छा, इसका अमर कैसे बनेगा, अमर भी बना लेते हैं। इसका अमर जो होता है ना, स्पेशल तरीके से बनता है, ये तो माजी है, ये मुजारे है। इसका या गिराएंगे, हम्म। इसको यहाँ सुकून देंगे, और फिर ये हमजा भी गिरा देंगे।
तो ये मुर बन जाएगा, ठीक है। जी। तीन फेले अमर ऐसे हैं जो स्पेशल तरीके से बनते हैं, एक मुर है, एक खुज है, कुल। खुज और कुल, ये तीनों इसी हम्म। तरीके से बनते हैं। इनमें इनके रूट वर्ड में क्या आता है, हमजा आता है, हमजा मीम तो रा। फिर ग्राफ में। ये जी। रूट वर्ड होते हैं, जो माजी में होते हैं ना, ये रूट वर्ड होते हैं, नून हा या स्वाद बारा। हम्म। अगर आपने रूट वर्ड देखने हैं तो आप माजी के पहले सीगर में चले जाएं, रूट वर्ड आराम से मिल जाएंगे आप, ठीक है। जी। अच्छा जी, जी। अब नहा यनहा, ये हाँ। असल में क्या ना। था, ये मुजारे में आखिर में पेश होती है ना, जी। यनहा यू होती है ना, हम्म। तो हम क्या करते हैं, इसको गिरा देते हैं, ठीक हम्म। है। ये आपको पसंद नहीं है उसके ऊपर पेश, कभी भी वो कहती मेरे ऊपर पेश ना लगाओ, दो पेश तो बिल्कुल ही नहीं। तो फिर वो क्या है, हम्म। हम क्या करते हैं, इसके ऊपर पेश गिरा देते हैं, और इसको हम क्या करते हैं कि मुजारे है ना, इसको भी आप देखें, इसके हम्म। ऊपर भी नून हा या था ना, जबर भी इसने गिरा दिया, जबर भी नहीं ले रही। जी। तो फिर हमने इसको जबर को किस में चेंज कर दिया, माजी में खड़ी जबर में, नहा बन गया, है ना। इसको हम्म। नहीं तो नहीं पढ़ेंगे ना, नहीं तो नहीं। नहीं पढ़ेंगे ना, क्या पढ़ेंगे, नहा पढ़ेंगे ना। और इसको जी। क्या पढ़ेंगे, यनहा पढ़ेंगे। तो यहाँ भी खड़ी जबर आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि या से पहले जबर है। या से पहले जबर हो तो वो खड़ी जबर में चेंज हो जाती है। जैसे आपका मूसा हम्म। है ना, तो मूसा जी। लिखा कैसे जाता है, वो इस तरह लिखा जाता है ये, लेकिन पढ़ा जी। कैसे जाता है, खड़ी जबर। हम्म। मूसा, या से पहले जबर हो तो खड़ी जबर पढ़ी जाती है, ये बात हम्म। याद रखें। या से पहले जबर हो जी। तो खड़ी जबर पढ़ेंगे। और मुस्तशफई लिखा होता है, लेकिन हम उसको पढ़ते हैं मुस्तशफा। ना हम्म। हा, या से पहले जबर है तो खड़ी जबर, यहाँ पे या से पहले जबर है तो खड़ी जबर। असल में हम्म। यनहा यू है, यहाँ पे तो जी। जबर ही है, लेकिन यहाँ पर पेश है। तो या से पहले देखना हम्म। है कि वो जबर आ रही है, तो फिर आपने खड़ी जबर पढ़नी है, ठीक है। जी। अब आगे क्या होगा, इसका जमा क्या, इसका वो क्या बन जाएगा, मस्दर। ना। नह और न नहुन। न नहयुन। बट वो दो फिश एक यहाँ पर नहीं हो सकते, राइट? लेकिन मस्दर में हो सकते हैं ना, हम्म। मस्दर में हो ठीक है। सकते हैं। नहयुन, जी। नाही मुनकर नहीं बोलते आप, वो फिर हम उसको गिरा देते हैं, लेकिन लगाने तो है ना, क्योंकि हमने फोलून हम्म। के वजन पे बनाना है ना, फालून के वजन पे जी। बनाना है, तो हमें नाहयुन जी। बना लिया ना। आगे क्या हम्म। है, सबरा यस्बिरु, सब्रुन। सब्र, नाहयुन, ठीक है। फिर हम इसको पढ़ते जी। क्या है, नाही, जब भी पेश होती है ना नहीं। यहाँ पे, तो फिर हम इसको जेर में चेंज कर देते हैं, ये आपका भरा, ठीक है। नाही अनिल मुनकर। तो यहाँ पर जब मस्तर हम्म। लिखना है तो नाहयुन या नाहयन पढ़ना है इसको, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे फोलन हो गया ना, जी। फोलन, फोलन के वजन पे, बस आपने वो एक वजन दिया उस पे बना देने हैं, ठीक है। आगे क्या है, हम्म। गियाबुन मस्दर, मस्दर غاب يغيب वह हुआ وهو على وزن فعل which प्याल। is actually فعل. अब देखें, ये भी आपका कौन सा है, ये मजीद फीस है, या मुझे ये बताएं, सुलासी मुजरद है या मजीद फी है, गाबा या गईबू, गयाबुन मस्दर है। जी मुजरद. सुलासी मुजरद तीन ही लेटर है ना, जी. माजी में अगर तीन ही लेटर हो तो वो सुलासी मुजरद होता है, ठीक जी. है। उसका मुजारे क्या बन रहा है, यगीबू बन रहा है, और उसका मस्तर जी. या बुन फियालुन के वजन पे बन रहा है, जी. फियालुन, ठीक है। तो अब देखें कितना मुश्किल हो जी. रहा है ना, यानी कोई एक खास वजन नहीं है, लेकिन मजीद फी में ये होता है हम्म. कि वो एक ही वजन पे बन रहे होते हैं, अल्लामा युअल्लिमु हाँ. तालीम, है ना, जी. कल्लमा युकल्लिमु तकलीम, कस्सरा युकस्सिरु हम्म. तफसीर, है ना। तो वो एक ही जी. वजन पे बन रहे हैं, लेकिन ये वाले देखें, हर हर फेल का अलग वजन पे आ रहा है। ये जी. इतने सारे फेल थे जिनका एक ही वजन पे आया था, ठीक है। लेकिन कितने हम्म. ज्यादा हजारों के हिसाब से अफाल है ना,
अब ये भी तो एक फेल है ना, गाबा या गीबू। अब इसका रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड तो अलिफ तो नहीं होता ना। माजी जी कैसे बने है इसका? गायबा गायबा। गायब। गायबा गैब से है ना, गैब में गा या बा होता है। और फिर या से पहले जबर थी तो हमने उसको क्या इसमें चेंज किया? अलिफ में चेंज किया, है ना। जी और ये क्या था? याग ये बू था। रूट वर्ड क्या था? गैन या बा। जी ठीक है, अब जब हमने इसको डाला है किस पे? यक इदू के वजन पे। ये कौन से वजन पे बन रहा है? गाबा या गईबू? दराबा। नॉट दराबा से ही बन रहा है ना। गायबा जी तो यग यगीबू। बू ठीक है, जी ये आपका यग, यहाँ पे ये, और ये बू। जी अब ये तो नहीं पढ़ा जा रहा ना। अब क्या करेंगे हम? हम्म, यगीबू तो अरबों को मुश्किल लगा, फिर हमने क्या किया? यहाँ से जेर को वो उठा के पीछे कर जी दिया। पीछे साकिन था, हम्म उसके पास कोई सामान नहीं था, तो ये इसने अपना बोझ, ये अरफिल्लत है, बीमार है, इसने अपना बोझ पीछे हम्म, फेंका और खुद सुकून में हो गया। तो ये आपका जी यगीबू बन गया। जी ठीक है, यगीबू बन गया आपका। हम्म तो जब भी आपका अरफिल्लत आएगा, कोई फेल आपका जो है वो बीमार होगा, उसमें हमजा होगा, कोई लेटर डबल आ रहा होगा, या फिर उसमें अरफिल्लत वाव या आ रहा होगा, तो उसका ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा ना। इसका भी ट्रीटमेंट हुआ जी हुआ है, इसका भी ट्रीटमेंट हुआ हुआ है, क्योंकि अरफिल्लत आया था ना बीच में, तो ट्रीटमेंट किया दोनों का। गायबा नहीं पढ़ा जा रहा, गाबा। अच्छा, वह जी वाला वजन, अब आप बनाइए ये वाले फियाल उनके वजन पे। जी हम्म, तो कामा यकूमु आ कुछ भी ये क्या था? ये काफ वो मीम था ना, इसका रूट वर्ड काफ वो हम्म मीम है। वो अलिफ में सो बदल गया तो कामा सो बन गया। हम्म, कवामुन हम्म। कि वो जो वाम। आप हरफ ओ या चेंज सॉरी करते हैं ना, वो जो आप हरफ चेंज करते हैं वो यहाँ पे नजर आ जाता है। यहाँ पे आपने या से अलिफ को चेंज में किया था ना, या से, तो वो या यहाँ पे नजर आ गया बाद में। जी ठीक है, तो वो मुजारे में हम्म नजर आ जाता है। यहाँ पर आपने बॉ को अलिफ में चेंज किया तो वो यहाँ नजर आ गया। तो किवाम तो ये बना था यकवी मुंह। हम्म यकवू मुंह बनेगा ना, क्योंकि ये बाप नसर से है। हम्म कामा यकूमू किससे है? बाप नसर से है। ऐसा ही है ना। हम्म जी जी। अब ये बना था यकवू मुंह। अब यकवू हम्म मुंह को हमने क्या किया? वो के पेश को पीछे किया और यहाँ पे सुकून दे दिया, तो got यकवू yeah बन गया। अब ये हम्म मुजारे पे दो पेश नहीं लगा सकते आप, ठीक है ना। जी नहीं लगा सकते, एक ही पेश जी आएगा, फेल के ऊपर दो पेश नहीं आते, इसम पे आते हैं। तो जी यकूमू हो गया बाब नसरा से। तो ये अब इस हम्म यकूमू क्या बन गया? ये तो मुजारे बन गया। अब आपने फियालों पे मस्तर बनाना है, तो आप अपना रूट वर्ड जो है काफ वो मीम फियालों के वजन पे डालेंगे ना, हम्म तो क्या बन जाएगा? तो बनाए डालें। किवामुन वाह मुन बनेगा ना। जी वाह मुन बनेगा। लेकिन जब भी अखिरत आएगा आपने ट्रीटमेंट करनी है। अब इसमें भी आपको क्या है? फियालों के वजन की किवाम। अब यहाँ पर आप देखें तो अलिफ है ना, हम्म यहाँ ये वो है ना, वो से पहले जेर आ रही है, तो आपने हम्म क्या करना है? आपने वो को या में चेंज करना है, क्योंकि पीछे जेर आ रही है। हम्म ये जो कसरा है ना, ये वो से कंपेटिबल नहीं है, तो हम इसको या में चेंज जी कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? कियामुन बन जाएगा। जी पहले क्या है? फियालुन के वजन पे किवामुन है। किवामुन हम्म अरबों को मुश्किल लगा, तो उन्होंने वो को क्या किया? वो को या में चेंज कर दिया, यहाँ तो में चेंज कियाम, कर दी। तो कियामुन बन गया। इसी तरह यहाँ पर जी आप देखें आबा, या आबा कैसे हो गया? मत कैसे आ दो गई? अलिफ मत कैसे दो आ अलिफ गई? मत क्यों आई है यहाँ पे? रूट वर्ड दो ही दो नजर आ अलिफ रहे हैं, यहाँ पे दो हमजे हैं। जब भी आप मत देखिए उसके नीचे दो हमजे होते हैं, ठीक है। तो ये असल में इस तरह था, तो ये अरबों को क्या हुआ? पढ़ना मुश्किल लगा। ये इस तरह जी था,
आबा। तो फिर क्या किया हम्म उन्होंने कि ये वाले दोनों मर्ज करके ऊपर मद डाल दी, इसकी बजाय एक जी जबर और डाली तो मद में चेंज हो गया। इसको आप यूं भी लिख जी सकते हैं, आबुन भी इस तरह भी लिख सकते हैं, और इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ये आबुन क्या बन गया, मुजारे में यू अब बू बन गया, लेकिन ये जी हाँ, इसके रूट वर्ड में हमजा आ रहा है, बल्कि दो हमजे आ रहे हैं। तो ये यू अब बू से क्या बन जाएगा, इयाबुन। इयाबुन, हम्म पियानो जी के वजन पे जब आप रूट वर्ड डालेंगे ना तो बोल इयाबुन बन जाएगा। बना के या बोल बताऊं? नहीं ठीक है, आप खुद बनाए ना, वो ही रूट वर्ड डाले, ठीक हमजा, हमजा बा, ये दो रूट वर्ड हम्म आपने इसमें डालने हैं। मैं बना के बता देती हूँ। ये आपका इफ़ालुन है, इफ़आलुन नहीं, फियालुन के वजन पे, सॉरी, फियालुन के वजन पे डालना है। डालें जरा। आपका ये फा कलमा है, हमजा, और फिर एक और हमजा है, और फिर बा है। तो ये फा कलमा आपका हमजा हो गया, आ बोल इसके नीचे जेर है, ठीक है। और इस ये दूसरा हमजा जो है ऐन कलमा, उसके ऊपर सुकून है, ठीक है। हम्म उसके ऊपर भी जबर है, ठीक है, उसके ऊपर भी जबर है, हम्म यहाँ पे जबर ही है ना, यालू। जी और ये अलिफ जो है एक्स्ट्रा है, ठीक है, जी अलिफ एक्स्ट्रा है यहाँ पे। क्या और फिर बोल लाम क्या है, बा है। जी तो बा के ऊपर क्या आ गया, दो पेश आ गया, मस्दर है ना। अब आपने इनको क्या करना है कि यहाँ पे जेर आ रही है, तो हम ये दूसरे हमजे को किस में चेंज कर देंगे, दूसरे हमजे को, यहाँ भी जेर जी थी ना, तो हमने हाँ यही तो वाला या कर रहे हैं हम लोग। दूसरे जी हमजे को या में, अगर पीछे वाव जी पेश हो तो वाव में चेंज करते हैं, पीछे जबर हो तो अलिफ में चेंज कर देते हैं, और जेर हो तो या में चेंज कर देते हैं। सेकंड अलिफ जो होता है ना, उसको आपने चेंज करना होता है पीछे पीछे वाले हमजे की हरकत के मुताबिक। हम्म जबर होगी तो अलिफ में चेंज हो जाएगा ये वाला, और ये जी वाला जो है जेर होगी तो या में। तो अब ये या में जब चेंज होगा तो ये ई या बुन बन जाएगा, हम्म ठीक है। इस तरीके से बन गया, रटने नहीं है, समझने हैं। और ये हम्म कुरान मजीद में या बुन आता है लफ्ज, 30th पारे में आता है जा, हम्म आबा या उबू या बुन, मस्तर है। अगला पढ़ें। इसका मतलब क्या है? या बुन लौटना, अच्छा। हमारी तरफ लौटेंगे, या बुन 30th पारे में लौटने के मानी में। आगे पढ़ें। हम सभी किया किया सुन कासा, रूट वर्ड क्या होगा, यहाँ या नजर आ रही है ना, तो काफ यासीन किया होगा, सुन ठीक है ना। कासा यकीसु, किया बा सुन कौन सा है, दरबा है ना, जी यकीसु। तो ये बनेगा यक यीसु बनेगा, जी यक यीसु। तो फिर हम हरकत को पीछे लाएंगे तो यकीसु बन जाएगा, ठीक है। जी जैसे ये यगीबू में बनाया था ना, जी यगीबू में ऐसे ही बनाया था ना, जी यगीबू बना था ना, तो फिर हमने जारकत को पीछे हम्म किया, इसको साकिन किया तो यगीबू बन गया। इसी तरह ये भी जी बनेगा। अच्छा, अगला क्या है, जी सामा या सुमू, um it's Sayamun no सियामुन। Sawamun Siwamun sorry सिवामुन तो बनेगा, लेकिन फिर हम क्या करें, सिवामुन तो नहीं पढ़ते ना, या यामुन बन जाएगा। जी ये सियामुन बनेगा। कैसे बनेगा, ये जो जेर है वाव ना, ये यहाँ पे हम्म वाव आ रही है ना, तो इसको या में चेंज करेंगे। पीछे, हम्म जो पीछे वाली हरकत होती है ना, उसके मुताबिक करके इल्लत को बदला जाता है। पीछे हम्म जबर हो तो अलिफ में बदलते हैं, पीछे जेर हो तो या में बदलते हैं, और अगर पीछे आपका पेश हो तो वाव में बदलते हैं। तो यहाँ पे जेर आ रही, इसको या जी में बदलेंगे तो सियामुन बन जाए। देखिए ना, ये पढ़ना मुश्किल है। यहाँ जेर आ रही है, अब ये जो वाव है, जी ये जेर के बाद वाव नहीं आ सकती, जेर के बाद हमेशा या आती है, जी तो उसको हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब जब हम जी इसको या में चेंज करेंगे तो ये तो या के नीचे जेर ही रहेगी ना, हम्म तो फिर अलिफ जो होती है, अलिफ जो है वो नहीं है जेर के साथ जा रहा ना, तो फिर हम उसको जबर कर देते हैं।
الف کو اپنے پیچھے زبر چاہیے ہوتی ہے، تو پھر ہم یا پہ زیر کی بجائے ہم زبر لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی لیکن سب سے پہلے تو ہم نے واو کو زیر کے مطابق یا میں بدلا نا، یا جی میں بدل لیا. اب یا کے نیچے زیر ہی آ رہی ہے نا، تو پھر پڑھنا جی مشکل ہو رہا ہے نا. ہوں تو یہ کیا بن رہا تھا، سی اور یا کے نیچے زیر آ رہی تھی، اور الف جی سے پہلے زیر تو تو سیا آتی ہی نہیں، تو یہ ہم نے زبر کر تو دی. یا جب ہوں تک ویسے یہ رٹ جاتے ہیں، مشکل نہیں ہوتی اس طرح کرنے کی، ہوں لیکن میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ یہ کیسے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے لکی جی یا لکا. جی لکیا ہوتا ہے ملاقات کرنا، اس نے ملاقات کی، وہ ملاقات کرتا ہے یا کرے گا، اس کا کیا ہو جائے گا؟ um لکھا یون بتن وجود تو یا بی کا یون بن جائے گا نا. ہوں اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ جب یون آ جاتا ہے آخر میں، تو اس کو ہوں حمزہ میں چینج کر دیتے ہیں. میں نے آپ کو پچھلی تو کلاس میں بتایا تھا نا لکھا کہ اون آخر میں یون وائس آئے نا، یون یا آ رہی ہو یا ہوں واو آ رہی ہو، حرف علت آ جائے، تو اس کو پھر حمزہ میں چینج کر دیتے ہیں. لکا یون نہیں پڑھتے بلکہ لکا ان پڑھتے ہیں. جی تو لکیا یلکا، اس کو یلکا ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یلکا یو ہے لیکن ہم یلکا پڑھیں گے. تو یہاں جی پر آپ کا، یہاں دیکھو یا سے پہلے زیر آئی ہے، تو اس کو ہم نے لکی یا ہی پڑھا ہے، لکا نہیں پڑھا. جب تک یا سے پہلے زبر نہیں ہوگی نا، تو کھڑی زبر نہیں پڑھیں گے. اگر زبر ہوتی تو لکا پڑھتے، لیکن زیر ہے تو جی لکی یا ہی پڑھا ہے، اور یہاں پہ زبر ہے تو یلقا پڑھیں گے. یہ بات سمجھیں، ٹھیک ہے؟ اور جی لکا اور مستر ہو گیا. اب شفا ہے تو یہاں کھڑی زبر پڑھا جائے گا، ہے نا؟ روٹ ورڈ تو وہی ہے، شین پا یائی، لام کاف یا ہے نا. جی لیکن اس کو کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ اس کو شفا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ زبر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ باپ دربا سے ہے اور یہ باپ سمیہ سے ہے، تو سمیہ میں یہاں زیر آیا لکیا، تو پھر ہم نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا، لکا نہیں بنایا اس کو، ٹھیک ہے؟ جی لیکن یہ باپ درا باپ میں ہے، تو شین فا یا تھا نا، یہ یا پہ بھی زبر ہی تھی، تو پھر ہم نے کیا کیا، شفا پڑھا، یہاں سے پہلے جی زبر آ گئی. اب یہاں پہ پھر زیر آ گئی ہے، یش فی یو، تو ہم نے اس کو یش، یہاں پہ دیکھیں زبر کر دی تھی، بٹ یہاں پہ نہیں کی، کیونکہ وہاں پہ یا جی سے پہلے زبر تھی، یہاں پر یا سے پہلے زیر ہے، تو اس کو ایز یشفی رہنے دیں گے، ٹھیک ہے؟ جی یشفا نہیں جی کریں گے یلقا کی طرح، صحیح ہے؟ جی تو جب یا سے پہلے زبر ہوگی تبھی الف میں چینج کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے، جی صحیح ہے؟ تو یہاں یا سے پہلے زیر ہے، یہاں پہ یا زبر ہے، تو اس کو الف میں چینج کیا، اس کو نہیں کیا. یہاں پہ یا سے پہلے زبر تھی، اس کو الف میں چینج کیا تھا، اور یہاں یا سے پہلے زیر ہے تو اس کو الف میں نہیں چینج کیا، ٹھیک ہے؟ جی تو یہ خیال رکھنا ہے. اب اس کا کیا بنے گا؟ اس میں بھی یون this آئے would گا نا. be شفاء but then it would be ہم کیا بولتے کیا ہیں؟ شفاء اون بولتے ہیں. بس یہ مثالیں یاد جی رکھ، جی اتنا بڑا نالج ہے نا. جی اور یہ تھوڑا سا نالج حاصل کرنا بہت بڑے نقبوں سے زیادہ ثواب ہے، کیونکہ اس کو سیکھ کے پھر ہم قرآن سیکھتے ہیں نا، کہ اچھا یہ لفظ کیسے بنا ہوا ہے. پھر ہم شفا نہیں بولتے، ہم شفا بولتے ہیں. جی فیال ان کے وزن پہ تو شفا ہی بولیں گے نا، جی شفا تو نہیں بولیں گے نا پاکستانیوں کی طرح وہاں پہ شفا بول رہے ہوتے ہیں. جی شفا اور شفا کیا ہوتا ہے؟ کنارہ ہوتا ہے. یہ ہونٹوں کے کنارے ہوتے ہیں یا جہنم کا کنارہ ہوتا ہے، اس کو شفا بولتے ہیں. جی کنارے کو، کسی چیز کا جو کنارہ ہوتا ہے، دریا کا، سمندر کا کنارہ، اس کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ like a shore ہاں a شور coast بولنا، yeah ہاں کوسٹ بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہے بات، تو یہ والی ہے. تو شفا بولنا ہے، شفا خیال ان کے وزن پہ. اچھا آگے کیا ہے؟ پڑھیں. کون پڑھے گا ابھی؟ آپ نہیں پڑھنا میں ہے؟ پڑھے I can پڑھے. do it it's fine ہاں ما جمع دكتورة or دكتور sorry دکتور، سب سے پہلے yeah پیش لگایا کریں.
अगर अलिफ लाम ना हो तो 2 पेश लगाएं, अलिफ लाम हो तो 1 पेश लगाएं। सबसे पहले लफ्ज के ऊपर क्या लगाएं? पेशी लगाएं। जी ये डिफॉल्ट एंडिंग होती है, डिफॉल्ट एराब होता है ये। फिर अगर पीछे से कोई आए, अलिफ लाम आए तो 1 पेश हो जाती है, हरफ जर आ जाए तो फिर 2 जेर बन जाते हैं या 1 जेर बन जाता है। अब वो कह रहे हैं मा जी जम ओ, क्या है जमा? दुक्तूर की जमा क्या है? हम्म दुक्तूर होता है डॉक्टर। हम्म तो अब इसका क्या है बताएं? दुक्तूर रुन की क्या बनेगी जमा? ये तो मुझे खुद जमा लग रहा है। हम्म आना अच्छा मुझे ये बताएं कि दफ्तरुन की जमा क्या होती है? दफ्तरुन दफातिरुन तो इसकी जमा क्या बनेगी फिर? दकातिरुन दफा, दफा, द, हाँ ठीक है ना, का, तीरुन ये काफ है, ठीक है, ये काफ है। दका जी तीरुन तीरुन, ती, जी और दकाती रुन रुन नहीं बनेगा, दकाती रतुन बनेगा। ओ याद करती जी हम्म, द- दकाती रतुन, ये इसकी जमा बनाने में क्या जरूरत है जमा बनाने की? जी तो हम्म वैसे उन्होंने बताया है कि यहाँ पे इसको, हम्म जैसे दुकान की जमा क्या होती है? दुकान, दकानीन हम्म होती है ना, बहुत सारी दुकानें, दकानीन। जी इसी तरह ये है, दफातर होती है। इस तरह जी आगे क्या, आगे पढ़िए। अदखिल यबदू फी जुमलतिन हम्म इसको जुमले में दाखिल करना है। अदखिल, एक होता है दखला, दखला से क्या होता है? दखल ये फिल यदखलु अमर है ना? नहीं, हमने हम्म इसको दाखिल करना है। या दाखिल करो, दाखिल यस करो। यबदू, यबदू को फी जुमलातिन, यबदू को जुमले में दाखिल हम्म करना है, जुमला हम्म बनाना है। तो क्या बनेगा? आ यबदू का मतलब माजी क्या होगा? बदा आ। पहले तो माजी बनाए बता ना, बदा हम्म आ, ठीक है। बदा आ से क्या बनता है? यबदू बनता है। जी ये बदा आ कैसे बन गया? असल में बदा वा था। रूट वर्ड हम्म तो बा दाल वाव है ना, बा दाल वाव रूट वर्ड है ना। जी तो बदा वा जो है, तो इससे बदा बन गया। वाव से पहले जबर है तो बदा बन गया। और मुजारे हम्म क्या बन गया? यब, कौन से वजन पे हम्म बना है? नसर में ना। जी यब दू वू बना ना। तो फिर हमने क्या बनाया? यब दू वू बना, ठीक है। हम्म तो फिर हमने इसको ये साकिन कर दिया। वो से पहले पेश आ जाए, मैंने बताया वो से पहले पेश आए तो वो को साकिन करते हैं। तो ये जी यबदू बन गया, तो ये मुजारे बन जी गया। अब वो कह रहे हैं इसको अच्छा, बदा यबदू का मतलब होता है शुरू करना, टू जी बिगन। बदा आ यब्द, यब्दबू से बदा यब्दू बन गया। यब्दू इसका मतलब होता है बिगन, शुरू करना, कोई भी काम हम्म शुरू करना। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर आप कहती हैं कि टीचर शुरू हो गए, हम्म क्या करने शुरू हो गए? यब्दा उल मुदरिसु। हम्म। अगर आपको कहना है लाइक लेसन शुरू हो गया तो फिर कैसे करेंगे हाँ तो कुछ भी बोले ना। हम्म यब्दू अन्नल मुदरिसा मरीज। अच्छा हम्म यहाँ पे सॉरी, इसका मतलब मैं गलत बोल गई हूँ। इसका मतलब पता है? यब्दू का मतलब, यब्दू का क्या मतलब है? वो और लफ्ज जो मैं अब बता रही थी आपको, शुरू हम्म होने का, बदा यब्दू, वो अलग है। इसका मतलब होता है लगता है, लगता है। इसको स्पेशल है ये वर्ड, ठीक है। हम्म लगता है कि हम्म जो टीचर है वो बीमार है, ये जुमला बना लेते हम्म हैं ना, ठीक है। हम्म तो इसका क्या बनेगा? यबदू, ये माजी मुजारे नहीं है, ये यब्दू है ही वर्ड। ये माजी से नहीं बना हुआ, ये मुजारे से नहीं बना हुआ। यब्दू का मतलब होता है लगता है। जी अन्नल मुदरिसा, हम्म यब्दू अन्नल मुदरिसा, हम्म मुदरिसा क्या हो जाएगा? टीचर हो जाएगा ना। और हम्म आगे क्या लगाएंगे बीमार के लिए?
बीमार को क्या कहते हैं? मरीदुन, है ना, मरीज है। जी तो ये जुमला बन जाएगा। ठीक है। तो बहरहाल हमारा मकसद जुमले बनाना नहीं है, हमने इस तरह की चीजें नहीं करनी है, हमने तो कुरान का तर्जुमा करना है। तो हमें पता होना चाहिए यब्दू जो है, एक तो वो बदा यब्दू होता है, शुरू होना, और जैसे शुरू टीचर जो है वो एक्सप्लेन करना शुरू हो गए, है ना, तो वो तो बदा यब्दू। ठीक है। जी और ये क्या है? लगता है के मानी है। जी ठीक है। लगता है कि टीचर जो है, यब्दू अन्नल मुदर्रिसा, अन्ना की वजह से आपका जबर आया यहाँ पर, मरीदुन, ये बन जाएगा। जी अच्छा, अब ये आपको सब यहाँ पे बता देंगे, हर चीज बता देंगे, तो इसको हमने बहुत गौर से पढ़ना है। अपने उस पे पढ़ना चाहते हैं या मेरे पास पढ़ना चाहते हैं, ये बता दें मुझे। हम पढ़ लेंगे। हाँ, आप पढ़ें, और जो समझ ना आए ना फिर वो, क्योंकि इसमें वही चीजें हैं जो मैंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन की है। मैं आपको यब्दू भी दिखा देती हूँ, या एंड पे कहीं आ रहा होगा, हम्म उसको मैं बता देती हूँ ताकि आपका डाउट निकल जाए ना कि मैंने सही बताया या नहीं। ठीक है। तो ये सब जमा बनिए, गाबा यगीबु गियाबुन, शरहुन। आई डोंट थिंक है इसमें। अच्छा, आप देख लीजिएगा, अगर हुआ ना तो फिर आपको हम्म समझ आएगा मैंने क्या बताया। ठीक है। जी ठीक है। इसमें तो नहीं है इसमें, हाँ, इसमें फाइल कैसे बनाते हैं वो मैंने बताया। सुलासी मुजरद से वो बनेगा किस पर? फाइलुन के वजन पे और मफूलुन के वजन पे। जब मजीद फी का फेल होगा तो उसमें आपका इसमें फाइल मुफइलुन और मुफअलन के वजन पे बनेगा। ठीक है। हम्म मुदर्रिसुन और मुदर्रसुन। ठीक है। जी मुअल्लिमुन और मुअल्लमुन। मुजल्लदुन। ठीक है। ये आपका इसमें मफूल है या इसमें फाइल है? मफहूम। मुजल्लिदुन और मुजल्लदुन, हम्म ये इस्मुल फाइल है, और ये मुजल्लदुन इसमें मफूल है। और ये कौन सा बाब है? जल्लदा युजल्लिदु। ठीक है। मुजल्लिदुन और मुजल्लदुन। हम्म समझ आ रही है? जल्लदा अल्लाह मा युअल्लिमु, ये बाब हमने तफईल पढ़ा है। देखिए, मोहम्मद भी किससे बना हुआ है? हमदा यू हम्मेदु, जी मुहम्मेदुन और मुहम्मदुन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्मुल मफूल है, हम्म ये है। मुहम्मदुन क्या है? इस्मुल मफूल है। और बाप हम्म कौन सा है? तफईल है। हम्मदा यू हम्मेदू और मोहम्मद दिन होगा, या फिर मोहम्मद दुन होगा, दोनों के मीनिंग में फर्क देखें। मोहम्मद मोहम्मद दिन का मतलब है कि बहुत ज्यादा तारीफ करने वाला। हम्म मोहम्मद दुन का मतलब है तारीफ करने वाला। और मोहम्मद नाम क्यों रखा गया था? जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए, की गई है, ऑलरेडी वो की गई। एक वो बाप तफील क्यों कहते हैं? क्योंकि वो देखे ना, इसका हम्मदा यू हम्मिदू और अल्लामा यू हल्लिमू, और वो जो फा अल्लाह यू फा इलू है, सबका पैटर्न एक ही है ना। जी जी फा अल्लाह और हम्मदा का पैटर्न एक ही नहीं है। हम्म रूट वर्ड तो तीन ही लेटर होते हैं, लेकिन एक जी लेटर डबल हो गया है ना, तो इसको मजीद फी में, अब इसके चार लेटर हो गए ना, तो इसको हम कहेंगे कि सुलासी मुजरद से नहीं है, ये मजीद फी से है। ये बात समझ आई है? जी चार लेटर हो जाए तो वो मजीद फी में आ जाता है। चाहे मिडिल लेटर ठीक है। डबल हो जाए, चाहे शुरू में हमजा लग जाए, बाब इफाल में शुरू में हमजा लग जाता है, अब अला हम्म युफ इलू हो जाता है इफाल। इसमें जी हम्मदा यू हम्मिदू अला यू फाइलू यू हम्मिदू और मुहम्मिदुन बन गया उससे इस्मुल फाइल। हम्म और ये जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है, ये इस्मुल मफूल है। वन हु हैज बीन प्रेज्ड मच, हम्म ये उनके दादा ने नाम रखा था, जानबूझ के ये नाम रखा था उन्होंने। हम्म इसका मतलब क्या होगा? वन हु हैज बीन प्रेज्ड मच, हम्म जिसकी जिसकी बहुत बहुत ज्यादा, तारीफ हुई थी। बहुत ज्यादा तारीफ हुई। और मोहम्मद दिन कौन होता है? खुद तारीफ करने वाला। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि हम्म वसल्लम जैसी तारीफ कौन, जितनी तारीफ कौन अल्लाह ताला की करेगा? हम तो नहीं कर सकते, जी है ना। तो तारीफ करने वाला कौन होता है? वो आपका मोहम्मद दिन होता है, मुहम्मी दिन, मुहम्मी दुन है, ठीक है, देर के साथ। और इसी के ऊपर लगा दें तो फिर ये वाला मीनिंग बन जाता है।
तो उन्होंने क्यों रखा था? आप कह रही है ना उन्होंने नाम रखा था, यानी उन्हें पता था ऐसा, यानी वो होंगे फिर आगे जाके। यानी इस बंदे की जो जिसका मैंने देखिए, हम क्यों मोहम्मद हम तो सुन्नत में रखते हैं ना, है जी। ना। लेकिन वो हम्म। उन्होंने क्यों नाम रखा था, वहां तो ऐसा कोई नाम नहीं था ना। नबी सल्लल्लाहु जी। अलैहि वसल्लम का एक नाम अहमद आया है, और वो इब्रानी किताबों में, ये तौरात वगैरह में अहमद आया है। ठीक है, हम्म। वो भी इसी रूट वर्ड से बना हुआ है ना। हम्म। अहमद अफलू के वजन पे बना हुआ है। तो वो भी हम रखते हैं, और ये मोहम्मद भी रखते हैं, हम तो उसमें रखते हैं ना। लेकिन हम्म। उन्होंने क्यों रखा था, दादा उनके बहुत प्यार करते थे उनसे, और उन्होंने उसका नाम, इस बच्चे की बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। मोहम्मद वो हम्म। होता है जिसकी और ऑलरेडी बहुत ज्यादा तारीफ की जा चुकी है। हम्म। हम्म, पैदा होते ही एक बच्चे को ऐसा नाम देना, जी। तो ये कहते हैं ना, नाम अच्छे रखने चाहिए, मीनिंगफुल रखने चाहिए। तो इसमें दो मीनिंग आते हैं, इसकी तारीफ भी बहुत ज्यादा हो, और उसकी तारीफ पहले ही आसमानों में हो रही थी, मोहम्मद ऑलरेडी हो रही थी। तो जी। वन हु हैज बीन प्रेज्ड मच। हम्म। फिर इस्मुल मकान और इस्मुल जमान है, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, इस्मुल जमान और मकान, इनको क्या कहते हैं, जर्फ कहते हैं ना। जी। जर्फ जमान होता है और जर्फ मकान होता है। अब हम्म। देखें, इसमें यही बता रहे हैं कि ये जो होते हैं ना, ये मफूल के वजन पे ही आते हैं। मजीद हम्म। फी का जो मफूल का वजन होता है, उसी के वजन हम्म। पे जर्फ भी आते हैं, दोनों का वजन एक ही है। जी। मु, मुसल्ला क्या होता है, इसम मफूल भी बन गया, और ये इसम जर्फ भी बन गया, नमाज पढ़ने की हम्म। जगह, प्लेस ऑफ प्रेयर। जी। युसल्ली क्या हम्म। है, ये फेले मुजारे है। इसी को आप हम्म। मुसल्ली बना लें तो ये नमाज पढ़ने वाला हो जाएगा। हम्म। युसल्ली क्या, ही प्रेज है ना, वो नमाज हम्म। पढ़ता है, फेले मुजारे है। लेकिन मीम लगा जी। देंगे, मुसल्ली यून कर देंगे, तो नमाज पढ़ने वाला बन जाएगा। हम्म। और जब आप उसको ये करेंगे, जेर को जबर करेंगे, तो वो आपका मुसल्ला बन जाएगा। तो हम्म। मुसल्ला क्या है, वो इसका वजन भी है, जर्फ का भी, नमाज पढ़ने की जगह। हम्म। और दूसरा क्या है, वो प्लेस ऑफ प्रेयर भी, और मफूल का वजन भी है। ठीक है, हम्म। देखिए इस्मुल मफूल। अब यहाँ से ये लाइन हम्म। पढ़े, आपको समझ आया। द नाउन ऑफ अ प्लेस एंड टाइम इन ऑल द अबवाब ऑफ द मजीद, द नाउन ऑफ जी। प्लेस एंड टाइम इज द सेम एज इस्मुल मफूल। यानी हम्म। जर्फ जो है वो, है ना, टाइम, ये है ना, हम्म। नाउन ऑफ प्लेस एंड टाइम। हम्म। नाउन ऑफ प्लेस एंड टाइम क्या होता है, जर्फ होता है ना, जी। जर्फ होता है ना, इज द जी। सेम एज द इस्मुल मफूल। तो हम्म। मुसल्ला इस्मुल मफूल भी है, ये इस्मुल फाइल है, ये इस्मुल मफूल है। और सेम सेम इसका मीनिंग क्या है, प्लेस ऑफ प्रेयर। जी। जर्फ का मीनिंग भी दे रहा है ना, हम्म। जर्फ का मीनिंग भी दे रहा है, प्लेस ऑफ प्रेयर का भी दे रहा है, और नमाज पढ़ने की जगह का भी दे रहा है, और मफूल का भी हाँ। दे रहा है। हम्म। ठीक है, मुसल्ला वो जी। होता है, मुसल्ली तो होता है ही प्रेस, मुसल्ली होता है जो कि प्रे करता है, नमाज पढ़ने हम्म। वाला। और मुसल्ला क्या हम्म। है, जिसकी नमाज पढ़ी जाए, यानी मैयत है, जी। हाँ। जिसकी नमाज पढ़ी जाए, वो हम्म। मुसल्ला होता है। ठीक है, एक तो इसके मीनिंग मुसल्ला हम्म। के हो गए कि जिसकी नमाज पढ़ी जाए, यानी मैयत, डेड बॉडी। जी। ठीक है, वो भी इस्मुल मफूल है। और मुसल्ला जो है, नमाज पढ़ने की जगह, वो भी इस्मुल मफूल, यानी दोनों का एक ही वजन है, और एक ही लफ्ज दोनों के मानी दे रहा है। जी। मैयत का मानी भी दे रहा है, जिसकी नमाज पढ़ी जा रही है, और नमाज पढ़ने की जगह का मानी भी दे रहा है। हम्म। तो ये मतलब है। अब यहाँ पे देखिए, इसका फ़अलतुन पे ये मैंने बता दिया। और जी। फ़ुअलुन जो है, नुस्खुन, ये आपका नुस्खतुन की जमा हो गई। ठीक है, हम्म। नुस्खुन, जी। नुस्खतुन, फ़ुअलतुन, इस वजन पे जो भी लफ्ज आएंगे उनकी जमा ये बनेंगी। उसके जी। बाद शरा, यशरा, शर, उन, ये इन्होंने मस्तर बताए हैं सारे जो मैंने पढ़ाए हैं, बस खत्म हो गया। जी। ठीक है, अभी ठीक आपने फ्रेश माइंड से शुरू करना है या काफी है, आगे पढ़ो। है, काफी। नहीं, आई ये थिंक हाँ, बाद में कर देंगे। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह वीक नेक्स्ट कैसे गुजर क्लास में। जाता है पता भी नहीं चलता। जी। ठीक है, तो इसको हम फिर, इसमें नई नई चीजें आ रही है, नया बाब आ रहा है। हाँ। तो अभी आप दो अबवाब पे कंसंट्रेट करें, हमने दो ही पढ़े हैं।
جی ٹھیک یہ ہے. اصبح ہے نا, اور اس میں کون سا باب پڑھایا جا رہا ہے, اس میں نیکسٹ ٹائم ہم دیکھتے ہیں کون سا باب ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو بھی آئیں گے نا جی. ان سے پتہ چل جائے گا. تو ہوں. اصل میں یہ مکس ہی آپ کو پڑھا رہے ہیں تھوڑے, ٹھیک ہے, سارے ہی پڑھا رہے ہیں. دیکھیں یہاں پہ بھی یبدو پھر آ گیا نا. یبدو جو ہوتا ہے اس کا مطلب میں نے کیا بتایا تھا, لگتا ہے. اٹ ہوں. سیمز, اٹ سیمز, یہ میننگ ہے اس کا. ہوں. میرے منہ سے پہلا جو میننگ غلط نکل گیا تھا وہ بھی ہوتا ہے بدا یبدو, پہلی بار کوئی کام کرنا, شروع ہونا کوئی کام جی. کا. ادنا کا ہوں. طالب, لگتا ہے کہ آپ اسٹوڈینٹ ہیں, نئے اسٹوڈینٹ ہیں, ہوں. ہے نا. ہوں. جی تو اٹ سیم یو آر ان, تو یبدو کے بعد انا بھی ضروری ہے لانا. ٹھیک ہے, ہوں. جی وہاں پر کیا آیا تھا, ان المدرس, جو ہاں. جملہ بنایا تھا نا ہم نے اس میں یبدأ ان المدرس مریض, تو جی. یہاں پر ضمیر آ گئی. ٹھیک ہے, تو دونوں میں سے جی. کچھ بھی آ سکتا ہے نا, دونوں ناؤن ہے. تو انا کا ضمیر ہوں. بھی آئے گی تو منصوب بھی آئے گی, اسم بھی آئے گا تو المدرسہ آئے گا. اور پھر جی. طالب جدید کیا ہے, یہ اس کی کیا بن جائے گی, خبر. انا کا اسم اور انا کی خبر. مرکب ہاں. کون سا مرکب بن رہا ہے, طالب جدید ہاں. مرکب توصیفی. توصیفی بن رہا ہے. نکرا بھی ہوں. مرکب توصیفی ہوتا ہے, اور معرفہ بھی ہوتا ہے. جی. ٹھیک ہے, تو پھر ہم اس جی لیسن ٹھیک میں ہے. دیکھیں گے کہ اس میں کیا پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے. کاناڈا. جی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. فی امان اللہ. آپ کی بھی چھٹی, اسکول کب شروع ہو رہے ہیں؟ شروع ہو گئے. آئی ہو گئے. تھنک 2 ہفتے یا 3 ہفتے ہو گئے. اوہ مائی گڈنس. ہوں. تو آپ آتے اسکول گئے پہلے, ہے نا. جی. ٹھیک ہے, اوکے. فی امان. یہاں پہ تو پتہ ہی نہیں, ابھی 4 کو شروع ہوں گے میرے خیال میں, لیبر ڈے ہاں. کے بعد. کینیڈا میں نہیں شروع ہوئے نا, صحیح ہے. لیبر ڈے کے بعد شروع ہوں گے. ہاں اچھا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اوکے. اللہ حافظ. اللہ اوکے. حافظ. اللہ حافظ. ہم،